Today we are going to start exercise 9.3. Chapter is areas of parallelogram and triangles. We will start with question number 1. Firstly, the main concept to be used in the starting questions. Start में जो भी questions होंगे उनमें main concept median of a triangle divides it into two triangles of equal area. याद रखना हमें median of a triangle divides it into two triangles of equal area. For example, we have triangle ABC. If AD is the median, अब AD median कब होगा? When D is the midpoint of BC. अगर D midpoint of BC, it means AD is the median. If AD is the median, in that case ये जो दो triangles बन जाएंगी, इन दोनों triangles का area equal होगा. Median of a triangle divides it into two triangles of equal area. E is any point on the median AD of a triangle ABC. We have triangle ABC. We have triangle ABC. उसके बाद AD is the median. Median AD. Median AD पे कोई एक point है E. E is any point. E is any point on the median AD. AD median पे एक point है E. अब प्रूफ क्या करना है? एरिया ABE is equal to एरिया ACE. अब ABE के लिए we will join ABE. This one. And then ACE. ये दोनों हमने ज्वाइन कर दिए. क्या प्रूव करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE. This one is ABE is equal to area of triangle ACE. Proof. Concept we know. Median of a triangle. Median of a triangle divides it into two triangles of equal area. हमने अभी डिस्कस किया. अगर ऐसा होगा, here we have triangle ABC. D is the midpoint. D midpoint means AD is the median. अगर AD median है तो इन दोनों triangles का area equal होगा. In triangle ABC, इस triangle में क्या है? AD is the median. AD is the median. Therefore, क्या होगा? Area ABD is equal to area ACD. इन दोनों triangles के area equal. ऐसे लिखेंगे. Area ABD is equal to area ACD. Let this be question number 1. उसके बाद now we have triangle EBC. Triangle EBC. Again D is the midpoint. देख रहे हैं आप? EBC. D is the midpoint. If D is the midpoint, it means ED is the median. अगर ED median है, because D is the midpoint. ED median है तो इन दोनों triangles का area भी equal होगा. Again using the same concept. Median of a triangle divides it into two triangles of equal area. तो क्या करेंगे यहाँ से? इस triangle EBC, इसमें ED is the median. In triangle EBC, ED is the median. अगर ये मीडियन है, therefore एरिया कौन सा एरिया? EBD
इज इक्वल टू एरिया ई सी डी। इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया ना। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है ए बी सी। देखेंगे हम यहाँ पे ए बी ई बनाना है, ए बी ई। अब देख रहे हैं दिस वन इज ए बी डी। ए बी डी मीन्स ये कंप्लीट ट्राइंगल। अगर इस ए बी डी में से मैं ई बी डी माइनस कर दूं, दिस वन इज ई बी डी। ए बी डी ये कंप्लीट ट्राइंगल है और ई बी डी ये पोर्शन है। अगर मैं ये डॉटेड पोर्शन माइनस कर दूं इस ट्राइंगल ए बी डी में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस वन ए बी ई। इन द सेम वे यहाँ से ए सी डी, ए सी डी ये पूरी ट्राइंगल, इसमें से अगर माइनस कर दूं ई सी डी मतलब ये डॉटेड पोर्शन, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए सी ई। इट मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtracting equation 2 from equation 1। equation 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट। equation 1 एरिया ऑफ ABD पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ equation 2 एरिया ऑफ ABD, then right hand side area ACD minus this one area ECD। हमने अभी डिस्कस किया ABD में से जब ये डॉटेड पोर्शन मतलब ABD माइनस करेंगे, हमारे पास रहेगा एरिया ABE। एंड हियर ACD में से जब ये डॉटेड पोर्शन माइनस करेंगे, हमारे पास रहेगा एरिया ACE। देख रहे हैं आप, टू प्रूव एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ACE, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव किया भी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। नाउ question number 2। question number 2 of same exercise। in triangle ABCE is the midpoint of median AD। तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही शेप बनेगी यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, E is the midpoint of median AD। फर्स्टली ट्राइंगल ABC, let it be triangle ABC। triangle is ABC, then E is the median, midpoint of median AD। firstly median AD, D यहाँ होगा। if AD is the median, it means D is the midpoint of BC। तो D midpoint of BC, it will be like this one। E is the midpoint of median AD। अब आपको ये बात याद रखनी है, अगर AD median है, median of a triangle divides it into two triangles of equal area, it means area of ABD is equal to area of ACD। अभी हमने कॉन्सेप्ट किया, ओके। उसके बाद E is the midpoint, E median है अगर, मतलब E is the midpoint of AD, तो AD का भी हमने midpoint फाइंड किया। यहाँ कह रहे हैं E is the midpoint। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। E is the midpoint of median AD, show that area of BED, क्या प्रूव करना है, एरिया BED is equal to
1/4 of area ABC, ये हमें प्रूव करना है। एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया BEC। तो फर्स्टली एरिया ऑफ BED कहाँ है? BED, दिस वन। ये रिजल्ट हम प्रूव कर लें, उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। फिर से कॉन्सेप्ट सेम रिपीट करूंगा। सिंस मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides it into two triangles of equal area। अभी हमने डिस्कस किया एक ट्राइंगल का मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ट्राइंगल ABC में AD इज द मीडियन, triangle ABC, AD is the median। अगर AD मीडियन है तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, ऐसा होगा। वन मोर थिंग, अगर ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ट्राइंगल के एरिया पूरी ट्राइंगल के एरिया का हाफ है और एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ABC, ऐसा लिख सकते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया पूरी ट्राइंगल के एरिया का हाफ। उसके बाद E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मेंशन इन द क्वेश्चन। E मिड पॉइंट है, अगर E मिड पॉइंट है इट मींस इस ट्राइंगल में, दिस वन इज अ ट्राइंगल ABD, अगर इस ट्राइंगल में E इज द मिड पॉइंट तो BE इज मीडियन। अगर BE मीडियन है तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, या फिर एक ट्राइंगल के एरिया पूरी ट्राइंगल के एरिया का हाफ। सिंस E is the midpoint of AD, अगर E midpoint है therefore BE is median। BE क्या हो गया? मीडियन। कहाँ? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD। अगर ये मीडियन है तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, या फिर एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ABD। एक ट्राइंगल के एरिया पूरी ट्राइंगल के एरिया का हाफ, या फिर 1/2 एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD किसके बराबर है? 1/2 एरिया ऑफ ABC। तो ABD की जगह मैं लिखूंगा 1/2 एरिया ABC, लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD इसकी जगह ये लिखा 1/2 एरिया ऑफ ABC, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। नाउ 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। क्या? एरिया BED is equal to 1/4 area ABC। area of BED is equal to 1/4 area of triangle ABC। ये प्रूव करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। एक और क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस करेंगे इसका, सेम एक्सरसाइज।
have discussed two questions of exercise 9.3. Chapter is areas of parallelograms and triangles. Now question number 3 of same exercise. Show the diagonals of a parallelogram, divide it into two triangles of equal area. Diagonals of a parallelogram, divide it into two triangles of equal area. तो ऐसा है, diagonals of a parallelogram, it means we are given a parallelogram. So हम parallelogram यहाँ पे draw करेंगे. Let it be a parallelogram. ये हमने ड्रॉ की parallelogram and suppose parallelogram is A, B, C, D. Name of the parallelogram is not given. Now question is show the diagonals of a parallelogram. It means we will draw diagonals also. One of the diagonals is AC and second one is BD. Diagonals भी draw किए. Show that diagonals of a parallelogram divide it into four triangles of equal area. अब diagonals अगर four triangles में divide कर रहे हैं, once again show that diagonals of a parallelogram divided into four triangles of equal area. We have four triangles here, 1, 2, 3, 4. अब इन four triangles के नाम लिखने के लिए point of intersection का भी कोई नाम होना चाहिए, तो let it be O. क्या given है यहाँ? We are given a parallelogram. Parallelogram ABCD with diagonals क्या है इसके? AC and BD. Diagonals भी हैं और diagonals intersect कर रहे हैं O point पे. Intersecting each other at O. This one क्या प्रूव करना है? Now we have four different triangles, 1, 2, 3, 4, and we will prove areas of these four triangles are equal. So area of AOB is equal to area BOC is equal to area COD is equal to area AOD. This one. Area of AOB is equal to area BOC is equal to area COD is equal to area AOD. Proof. ABCD is a parallelogram and we know diagonals of a parallelogram bisect each other. Parallelogram के diagonals bisect कर रहे हैं. AC and BD bisect each other. Bisect means अगर AC bisect हो रहा है, it means AC के ये दोनों parts equal होंगे. OA is equal to OC. दोनों parts equal मतलब O is the midpoint of AC. ऐसा याद रखना है. अगर O midpoint of AC है, it means इस triangle में, ये पूरी triangle ABC, यहाँ BO median है. ध्यान रखना है. BO is the median. अगर BO median, it means इन दोनों triangles के एरिया equal होगा. उसके बाद आप देखेंगे अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, इट मींस इस डायगोनल के भी दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. OB इज इक्वल टू OD. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, इट मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. अगर O मिड पॉइंट ऑफ BD है तो CO मीडियन होगा. मीडियन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल एरियाज बन गए यहाँ पे. तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. फर्स्टली वी नो diagonals of a parallelogram.
डायगोनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के? बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वी कैन से OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और O is the midpoint of AC as well as BD। और midpoint हो गया। सेकेंडली हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे also median of a triangle divides it into two triangles of equal area। मीडियन क्या करता है? डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये भी हमने अभी पढ़ा। नाउ वी हैव दिस ट्रायंगल। सपोज ट्रायंगल इज ABC। ट्रायंगल ABC अभी हमने पढ़ा O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है O, सो BO इज द मीडियन। लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में BO इज द मीडियन। Therefore यहां से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल। एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया BOC। आफ्टर दैट इस ट्रायंगल में देखेंगे ट्रायंगल BCD, इसमें CO इज द मीडियन लिखा है हमने। O मिड पॉइंट है, अगर O मिड पॉइंट है तो यहां से CO मीडियन। इन ट्रायंगल BCD CO इज द मीडियन। Therefore जब CO मीडियन, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया COD। आफ्टर दैट आप यहाँ आएंगे ट्रायंगल ACD यहाँ O मिड पॉइंट है, OD मीडियन हो जाएगा, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल। अब बार बार ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया COD इज इक्वल टू दिस वन एरिया AOD। एंड जब आप यहां आएंगे ट्रायंगल ABD में, हियर AO इज द मीडियन। जब ये मीडियन है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ दिस वन AOD इज इक्वल टू एरिया AOB, दिस वन। नाउ अब क्या करेंगे? These are equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4। 1 2 3 4 इक्वेशन में क्या है? AOB BOC ये दोनों इक्वल। सपोज 1 2 3 4, 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, 3 is equal to 4, 4 is equal to 1। It means ultimately all the four areas are equal। So we will simply write from equations 1 2 3 and 4, इन चारों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? फर्स्टली एरिया AOB इज इक्वल टू एरिया BOC इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं BOC किसके बराबर है? COD के बराबर, एरिया COD। और COD किसके इक्वल है? AOD के बराबर, इज इक्वल टू एरिया AOD।
आपने एक बात का ध्यान रखना है, इन सारे के सारे एरियाज को एक ही लाइन में लिखना है, इक्वल टू डाल के सेम लाइन में ये सभी आने चाहिए. दैट विल बी मच बेटर फॉर यू. सो दिस इज diagonals of a parallelogram, divide it into 4 triangles of equal area. This is question number 3, exercise 9.3. Chapter is areas of parallelograms and triangles. Thank you.